चलो now children, please basic with your rough copy, because today I'm going to start the new topic. Just after consumer equilibrium, we will start indifference curve, that is of the same chapter. Okay, so please take your pen and please take your any rough copy, because you need to draw one diagram. Okay, that diagram is called the indifference curve. That diagram is called indifference curve. Okay, first of all, everybody write down the name of topic. Indifference curve. INDIFFERENCE. Indifference. Indifference curve. Written? Now, first of all, let's see the meaning of indifference. Then I will show the diagram, how to draw it. What is the meaning of indifference actually? Now, listen carefully. Indifference means not showing your interest towards anything. Indifference means not showing interest towards anything. You are totally unconcerned. You are not showing your interest. If two friends are fighting with each other, you are standing like this. Okay, you are standing like this because both are your friend. You do not like to take side of him or take side of another friend. Okay, so both friends are just equal, just same in front of you. So you are not taking part in between them. Let them fight each other. उन्हें आपस में लड़ने दो. तुम न इसके फेवर में बोलोगे ना तुम उसके फेवर में बोलोगे, क्योंकि दोनों तुम्हारा फ्रेंड है. तुम दो काम करोगे. या तो तुम उन दोनों का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, और यू कैन लीव दैट प्लेस इमीडिएटली. तुम वहां से छोड़ के भाग जाओगे. तुम किसी एक का फेवर लोगे तो वो तुम्हें बाद में पीटेगा. ठीक है, तो व्हेन यू आर नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनीबडी, ऑफ एनीवन, that is called indifferent. ठीक है, being an indifferent, you are not taking side of anyone, that is called indifference. किसी चीज के प्रति अपने इंटरेस्ट को नहीं शो करने को कहते हैं indifferent रहना. Indifferent रहना. जैसे in my class, suppose 40 students are there, all 40 students are equal before me. So I will treat everybody on an equitable manner, in an equal manner. That is, it means I am totally indifferent. I am totally indifferent. I am totally impartial. तो वो हो जाएगा indifferent होना. ठीक है. Now let's correlate this term with this topic. Our topic is indifference curve. देखो, when you go to the market, you can buy 1 kg of apple and 2 kg of an orange. Okay, or you can buy 2 kg of orange and 1 kg of apple. When you start thinking that both the combination of apple and orange are equal for you, then you can buy any one out of it. मैं अभी कैमरा शेयर करके बताती हूँ. तुम लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा. तुम लोग इसको ध्यान से देखो. देखो, मैं कैमरा शेयर कर रही हूँ, तुम लोग इसको ध्यान से देखना. देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया. मैंने क्या किया, यहाँ लिखा 1 kg ऑफ एप्पल. ठीक है, 1 kg ऑफ एप्पल, और मैंने यहाँ पे लिखा 2 kg ऑफ ऑरेंज. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 2 kg ऑफ ऑरेंज एंड 1 kg ऑफ एप्पल. दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज, this is an apple, this is a quantity of apple, this is a quantity of an orange. So 1 kg of apple, 2 kg of apple, 2 kg of orange, 1 kg of orange. So if you have two combination, if you have two bundles of good, these are called bundle, children. These are called bundle. If you write the combination of two goods in a bracket, that is called bundle. That is called bundle. Okay, it is called bundle. Okay, and bundle means combination of two goods. Combination of two goods are called bundle. Are called bundle. Okay, this is first bundle, this is second bundle. Similarly, I can make one more bundle, 3 kg of apple, 4 kg of orange.
4 kg of apple and 3 kg of orange. So here are 4 bundles, 1, 2, 3, 4. So bundles are also called consumption bundle, and it means different combination of two commodities. It means bundle means different combination of two goods. First combination, second combination, third combination, fourth combination. First combination, second combination, third combination, fourth combination. So altogether we are having 4 combination. 4 combinations. ठीक है? Out of these 4 combination, in combination number A, we have 1 kg of apple, 2 kg of orange. In combination B, we have 2 kg of apple and 1 kg of orange. In combination C, in combination D, 3 kg of apple, 4 kg of apple, 4 kg of orange, 3 kg of orange. So these are called the bundles. These are called bundles. ठीक है? और ये सारा कॉम्बिनेशन है. 1 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 1 का कॉम्बिनेशन है, 3 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 3 का कॉम्बिनेशन है. क्लियर? ठीक है. अब देखो, मैं मार्केट गई, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 kg ऑफ एप्पल खरीदा और 2 kg ऑफ एप्पल खरीदा. ठीक है, या मैं खरीदने का सोच रही हूँ अभी. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ एन ऑरेंज. 1 kg एप्पल, 2 kg apple, 2 kg of orange, 1 kg of orange. These two are same for me. These two are same for me. Why? Because in first bundle, 1 kg of apple, in second bundle, 2 kg of apple. In first bracket, in first bundle, 2 kg of orange and 1 kg of orange I can buy. तो यहाँ पर ये कम है तो ये ज्यादा है, यहाँ पर ये ज्यादा है तो ये कम है. ठीक है, तो मेरे लिए बोथ आर सेम. मेरे लिए बोथ आर सेम. अगर मैं इसको लेती हूँ तो इसमें एप्पल ज्यादा है, ऑरेंज कम है. मैं इसको खरीदती हूँ तो इसमें ऑरेंज ज्यादा है, एप्पल कम है. तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, ये या फिर ये. मैं दोनों में से कुछ भी खरीद सकती हूँ. अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, where I can choose any one out of these two, it means I am totally indifferent. I am totally indifferent. Why indifferent? Because both bundles are same for me. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता ना, एक दो के साथ अगर मान लो ऐसा होता, इसका 10 kg होता और इसका 8 kg होता, एप्पल 10 kg, ऑरेंज 8 kg, तो मैं यहाँ पर इंडिफरेंट नहीं रह पाती, क्योंकि इंडिफरेंट का मतलब होता है बोथ बंडल्स आर सेम फॉर मी. सो आई एम टोटली इम्पार्शियल. मैं पक्षपात नहीं करूंगी इन दोनों के बीच, क्योंकि दोनों में क्वांटिटी एक जैसा है. ये कम तो यहाँ ये कम, ये ज्यादा तो यहाँ ये ज्यादा. तो मैं इनडिफरेंट हो गई, मैं impartial हो गई. But suppose with 1-2 combination of apple and orange, if I have an opportunity to buy 10 kg of apple and 8 kg of orange, so obviously I will select this bundle. I will select this bundle. मैं ये bundle खरीदूंगी. इसका मतलब है here I am making preference. Here I am making preference. Here I cannot be indifferent. मैं यहाँ थोड़ी सी greedy हो जाऊंगी, मैं थोड़ी सी लालची हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने मेरे पास पैसे हैं उन पैसों से मैं, अगर यही मुझे मिलेगा तो क्यों ना मैं इसको खरीदूं. तो I will prefer to buy this combination. बात समझ में आई कि नहीं? बात Yes, समझ में ma'am. आई? हाँ, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना बच्चों, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर हम लोग इंडिफरेंट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लालच में आ जाएंगे, हम खरीदेंगे ये. जब हम लोग को कम पैसों में ज्यादा मिलता है तो हम लोग ज्यादा वाला खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते हैं ना. तो वहां पर हम लोग प्रेफरेंस करेंगे, हम लोग इंडिफरेंट नहीं होंगे. लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होगा, इन दिस सिचुएशन वी विल बाय anyone. अगर ऐसा होता है इसका मतलब हम लोग क्या हो गए? इनडिफरेंट हो गए.
हम लोग क्या हो गए, इनडिफरेंट हो गए, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, आवर टॉपिक इज इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसा ही टॉपिक मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज इन डिफरेंस कर्व, इन डिफरेंस कर्व, ठीक है। अब तुम लोग साथ साथ में लिखते जाना, इन डिफरेंस कर्व इज अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग इन डिफरेंस कर्व, आई वुड लाइक टू फैमिलियर यू विथ द टर्म इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है। मैं ये तुम्हें टॉपिक पहले बताना चाहूंगी, ठीक है। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या, सपोज इन वन कॉलम आई एम राइटिंग हियर unit, not unit, combination. First is combination, write it, write in your copy. First is combinations. Second is commodity X, next is commodity Y, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया मैंने। कॉम्बिनेशन नंबर ए, कॉम्बिनेशन नंबर बी, सी, डी, ई, जो भी कॉम्बिनेशन है। Here I am writing 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 quantities of X commodity is here. Next 12. अब इसमें 4 घटाओ 8, 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 घटाए 5 घटाए तो 3, ठीक है। 4 घटाए, अब इसमें 4, इसमें घटाओ 3 घटाओ, यहाँ पर 3, 5, ठीक है। 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 1 घटाएंगे तो 2, ठीक है। 12, 8, 5, 3, 2, 12, 8, 5, 3, 2. I cannot write any value, children. That is why I have to make a plan regarding selection of the values. I cannot write any value. 12, 30, 94, 2. No, I have to follow a pattern. That is why I have to little bit pause in between the values. मुझे रुकना पड़ा उसमें। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। उसको हटाओ, छोड़ो। मैंने यहाँ पे एक बंडल बना दिया, ऐसे घेर दिया, दूसरा बंडल बना दिया, ऐसे घेर दिया, तीसरा बंडल ये तैयार हो गया, चौथा बंडल ये तैयार हो गया, 5वां बंडल ये तैयार हो गया। सो 5 combinations are there or 5 bundles are there. 5 bundles are there. You can write here combination, you can write here bundles, both words are correct. Now, if I am selecting combination A, it means I have to buy 1 kg of apple and 12 kgs of orange. If I opt bundle C, then I can buy 3 kg of X or apple or 5 kg of orange or Y. If I'm selecting the last option, last combination, that is combination number E, then in this combination, in this bundle, I am buying the largest quantities, the biggest quantity of X, that is 5 kg of apple, and I am buying the lowest quantity of Y, that is orange, that is only 2 kg of orange. So here we are having 5 combination, 5 bundles. Okay, we can buy any one out of it. हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं भाई, क्यों? प्रॉब्लम तो वहां ना होता जहां पर 1 12 होता और 12 1 होता। यहाँ पर क्या, कोई भी हम खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 12 है, सेकेंड में ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। अगर मैं और बढ़ती हूँ आगे, क्वांटिटी ऑफ एक्स becomes less, quantity of Y becomes high. If I move ahead to the option number D, then quantities of X will rise and quantity of Y will again reduce. तो जितना मैं ऑप्शन पर बढ़ती जाती हूँ A, B, C, D, E, उतना ही X का ज्यादा क्वांटिटी मिलते गया और Y का कम क्वांटिटी मिलते गया। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। Why we have to sacrifice Y? मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं अभी पूरा नहीं समझाई हूँ। अगर मैं ये भी खरीदना चाहूंगी तो
अगर मैं 1 और 12 का ऑप्शन है, अगर मैं बी में आना चाहूंगी तो अगर मुझे एप्पल ज्यादा टेस्टी लगता है तो मैं बी पर आ जाऊंगी, बी पर आऊंगी। तो यहाँ पर ये तो ज्यादा है, बट टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स, that is 2 kg of apple, I have to reduce 4 quantity of y, 4 quantity of y, ठीक है। until and unless I reduce y, I cannot buy x। जब तक मैं इसे घटाऊंगी नहीं तब तक मैं ये ज्यादा परचेज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मनी इज लिमिटेड, मनी इज लिमिटेड, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड मनी, because of limited budget or limited money, if I want to buy more of x, every time I have to reduce y so that I can arrange more money to buy more quantity of x। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ कुछ पीपीसी ऐसा मिल रहा है कि नहीं? पीपीसी जो टॉपिक था वैसा कुछ दिख रहा है कि कुछ वैसा है? हाँ है ना इसमें। तो यहाँ पर क्या है, जितना हम लोग इसका ज्यादा खरीदना चाहेंगे उतना इसको कम करना पड़ेगा ना, उतना इसको कम करना पड़ेगा। कम क्यों कर रही हूँ मैं आपको बोलो? मैम हर बार y ही क्यों कम हो रहा है? x को भी तो कम कर सकते हैं हम लोग। सुनो, बिल्कुल सुनो, कम कर सकती हो तो भाई जिसको कम करना है मैं y ले आती हूँ, x यहाँ पर तुम ले आओ। जिसको भी कम करना है ना वो तुम्हारा एक्स्ट्रा कमोडिटी हो गया, ठीक है। मैं y को बढ़ा देती हूँ। अगर तुमको लग रहा है कि मैं सेक्रीफाइस इसका ही करूं, मैं सेक्रीफाइस इसका करूं तो ठीक है। 12, 8, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने इसको यहाँ ले आया, अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ, इसको घटा रही हूँ, दैट्स ऑल। अगर तुमको लगता है कि मैं y का क्यों नहीं घटाऊं तो घटा लो y का। देखो प्रिंसिपल जो होगा, जो जो लॉ होगा वो ऐसे ही वर्क करेगा। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब मुझे, सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जब मुझे पेंसिल ज्यादा खरीदना होगा तो पेन को कम खरीदना होगा कि नहीं? जिस साल अगर तुम्हारे घर में अगर मान लो कि 50,000 या 80,000 का अगर टीवी आ गया, एलसीडी अगर आ जाता है तो उस साल बाहर का ट्रिप कैंसिल, ठीक है। या उस साल एसी नहीं खरीदना है, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना, प्लान बनता है कि नहीं? हाँ, या अगर तुमको एसी खरीदना है तो उस साल क्या कहते हैं, टीवी खरीदने का प्लान कैंसिल हो सकता है। अब ये कहो कि नहीं मैम मेरे घर में तो हम तो घूमने भी चले गए, टीवी भी खरीद लिए, एसी भी खरीद लिए, हो सकता है भाई। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि इफ यू वांट टू बाय वन कमोडिटी वी हैव टू रिड्यूस द परचेजिंग ऑफ अनदर कमोडिटी। ये सिंपल ये होता है कि नहीं? अगर एक चीज ज्यादा खरीदना होता है तो दूसरी चीज हम लोग कम खरीदते हैं कि नहीं? अगर घर में 4 फोन है, घर में 4 एंड्रॉयड सेट है तो 5वां अगर आएगा तो वो सिंपल फोन आ जाएगा, वो सिंपल फोन आ जाएगा। ऐसा होता है, कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड मनी। इफ यू वांट टू रिड्यूस एक्स you can reduce, it depends upon your taste, but if you are reducing x then it will be shifted to this side। जिस बच्चे ने भी पूछा हो मुझसे वो सुन लो पहले, जिसको तुम लोग घटाना चाहोगे वो हमेशा कहाँ पर लिखते हैं हम लोग? इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है, मैं बोल रही हूँ यहाँ से, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेक्रीफाइसिंग को यहाँ लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। सेक्रीफाइसिंग 12, 8, 5, 3, 2 ये तो घट रहा है, इसको तुम लोग फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन राइट द डिक्रीजिंग वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम, यू कैन राइट हियर, एंड दिस कॉलम यू कैन मेंशन टू द राइट हैंड साइड कॉलम, बट द कंडीशन इज whatever value, whatever quantity of the community you are reducing, that must be reduced one after one। तुम इस कॉलम को यहाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉलम को तुम यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट कंडीशन इज अप्लाइड चिल्ड्रेन, कंडीशन इज अप्लाइड। वो क्या है कि जिसका घटाओगे उसका वैल्यू घटते जाएगा, घटते जाएगा। 12 के बाद 8, 8 के बाद 9 नहीं आएगा, 8 के बाद 7 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 9 नहीं आएगा। ध्यान से पहले सुन लो, 12, 8, 5, तो हर बार 2 3 से कम है, 3 5 से कम है, 5 8 से कम है, 8 12 से कम है, तो एवरी एडिशनल क्वांटिटी इज लेसर देन इट्स प्रीवियस वन, whereas every value in this column will be increasing। ठीक है, अगर तुमको इसको ज्यादा खरीदने का मन है ना, इसको ज्यादा खरीदने का मन है, तो तुम यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिखो इसको 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, लेकिन बच्चों इसको घटाना पड़ेगा ना, इसको घटाओगे तुम, फिर घटाओगे कैसे, पहले 20, फिर यहाँ पे 15 करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 11 करोगे, फिर यहाँ पे 9 लिखोगे, इस तरह से, यानी एक तुम्हारा डिक्रीजिंग होगा ही होगा, चाहे किसी को भी घटाओ। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, हाँ देखो, और नाउ दिस इज कॉल्ड इन डिफरेंट शेड्यूल चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड इन डिफरेंट शेड्यूल। नाउ लेट्स सी, हियर यू हैव 5 ऑप्शन, भाव्या है, भाव्या के पास मान लो 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। बिफोर गोइंग टू द मार्केट शी हैज मेड द प्लान that I have 5 opportunities, out of 5 I have to select anyone, anyone, कौन सा चुनना है वो भाव्या के इंटरेस्ट पर शो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन में उसने रखा कि या तो मैं 1 पेयर सैंडल खरीदूंगी और 12 सूट खरीदूंगी, बहुत अच्छा प्लानिंग है भाई। बी अगर वो चुनती है तो 2 यहाँ पर शूज खरीदती है, सैंडल खरीदती है, लेकिन अब ड्रेस में इसको यहाँ पर कम खरीदना होगा। अगर सी ऑप्शन आती है तो सी में उसके पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम 3 सैंडल खरीदती हो तो तुमको यहाँ पर 3 और ड्रेस कम खरीदने होंगे, 5 खरीदना होगा। तो जब इसको बढ़ाने का परमिशन तुम्हें तभी मिलेगा जबकि तुम इसके परचेसिंग को कम करो, ताकि तुम्हारे पास पैसे बचे, एंड दैट मनी विल बी यूज्ड टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ सैंडल्स, मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास बंडल है। अच्छा, यू कैन सेलेक्ट एनीवन, यू कैन सेलेक्ट एनीवन, कोई भी चुन लो। मैंने क्या किया, इसको चुनूं, इसको चुनूं, इसको चुनूं, किसको चुनूं, 1 2 मैं क्या चुनूं, तो यहाँ पर मेरा हाथ आ गया, डी पर हाथ आ गया, डी पर मेरा हाथ आ गया, ठीक है। मैंने ऐसे आंख बंद किया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, यहाँ पर आ गया। मान लो जय माता दी, जय माता दी जो करते हैं ना ऐसे करके, तुम लोगों ने देखा होगा, जय माता दी, जय, टिक मान लो इस पे आ गया, तो ऐसे करके टिक आ गया, तो यहाँ पर आ गया, यानी कि 4 और 3, 4 और 3, तो फाइनल हो गया 4 और 3, फाइनल हो गया 4 3, मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है। भाव्या ने इसको खरीद लिया, वो घर चली आई, ठीक है। जब वो घर चली आती है तो शी डजंट रिग्रेट टू नॉट टू चूज A B C and E, उसे कोई पछतावा नहीं होगा कि हाय मैंने ए ऑप्शन छोड़ दिया, हाय मैंने बी ऑप्शन छोड़ दिया, मैंने ए वाला क्यों नहीं खरीदा, उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा, उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एवरी बंडल, every combination here are giving equal level of satisfaction. That is very important line. Equal level of satisfaction. If you are writing, then please write here. Equal level of satisfaction. ठीक है? मतलब every bundle 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर बनाया, तो ये मत समझ आना कि 12 8 बनाया, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A B C D E, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में दोनों कम्युनिटी है, तो ऑल 5 कॉम्बिनेशन गिव मी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। When all 5 bundles are giving equal satisfaction to me, then why we have to make a plan? We will not make a plan. We will select any one out of 5. We will select any one.
चलो भाई, जब सबसे इक्वल मिल रहा है तो मैं कोई एक खरीद लेती हूँ ना, क्यों प्लान बनाऊं? प्लान तो तब बनता जब इसमें ज्यादा होता, इसमें कम होता, लेकिन यहाँ तो सब बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर 1/12 लास्ट में आई तो ये ज्यादा ये कम, इसमें आई तो 2/8, इसमें कम है इसमें ज्यादा, तो यहाँ पर ये ज्यादा है ये कम, तो आई कैन सेलेक्ट एनी वन, आई कैन सेलेक्ट एनी वन। क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इक्वल हो गया तो आई विल बी इनडिफरेंट, आई विल बी इनडिफरेंट। और मैंने शुरू में ही मीनिंग बताया, इनडिफरेंट मीन्स नॉट शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक बंडल, not showing any interest towards any specific bundle is called indifferent. Every bundle gives me equal level of satisfaction, so I can select any one out of 5. So she has selected option D. She will buy 4 pair of sandals and 3 dresses. This is called the indifferent schedule. This is called indifferent schedule. Clear? Indifferent schedule is a tabular statement which shows that every bundle is giving equal level of satisfaction to the consumer. Clear हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ? I am repeating. Indifferent schedule is the schedule which shows different combination of different bundles, different combination of two goods, different combination of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer. That is called indifferent schedule. कोई भी बंडल चुनने से मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसीलिए मैं कोई भी एक चुन लेती हूँ। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस। हाँ, अगर मैं खास तौर पे कुछ सोच करके अगर मैं ये चुनती हूँ और ये क्योंकि सबसे ज्यादा है, भाई सबसे ज्यादा मैं कैसे बोलूं? यहाँ पर 12 सबसे ज्यादा है, लेकिन एक्स में तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गया ना, तो सब तो कंफ्यूजिंग है, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंट शेड्यूल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पेज को फिर से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऐसे रख दिया ताकि ये पेज भी मुझे दिखता रहे। रुको, ये पेज भी मुझे दिखता रहे। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू मैं लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया x, x में हो गया 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर y में क्या लिख दिया मैंने? 12 8 5 3 2। कॉम्बिनेशन नंबर A B C D E। अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ भी मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ राइट वन मोर नेम MRT, सॉरी यहाँ पे लिखो MRS, MRS लिखो तो MRS, राइट इट्स फुल फॉर्म, मार्जिनल रेट ऑफ substitution, marginal rate of substitution. Okay, it is the difference, it is the difference between two y's, difference between two y's। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला है डेल्टा y divided by delta x, delta y lost divided by delta x, that is gain, lost by gain, sacrifice by गेन। मैंने कितना त्याग किया और मुझे कितना मिला। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यहाँ पर डैश होगा, पहले डैश करो। इसके बीच गैप कितना है? 4। इसके बीच का गैप कितना है? 8 - 5। इसमें कितना गैप है? 3। इसमें कितना गैप है? 2। इसमें कितना गैप है? 1 हो गया। 4 3 2 1। बोलो, ये क्लियर हुआ कि ये मैंने कैसे निकाला? Gap between Yes, 2 ma'am. and 3 1, gap Hello? between 3 and 5 2, gap between 5 and 8 3, gap between 8 and 12 4, gap between 12 and what? Nothing. So we will put here dash, we will put here dash। तो A के पास MRS कुछ नहीं होता है बच्चों। फर्स्ट बंडल के पास MRS हमेशा ब्लैंक होता है। ठीक है,
अब ये वैल्यू, what does it show? It shows that we have to reduce 4 quantity of y if you want to buy one more quantity of x. If you want to buy one more of x, 2 to 3, then we have to reduce purchasing of 3 quantities of y. If you want to buy one more quantity of x, we have to reduce 2 quantity of y. फिर से सेम, और खरीदना है एक और ज्यादा, तो मुझे इसका एक कम खरीदना होगा. तो हर बार सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है कि नहीं? 4 का सैक्रिफाइस एक ज्यादा खरीदने के लिए, 3 का सैक्रिफाइस एक ज्यादा खरीदने के लिए, 2 का सैक्रिफाइस एक ज्यादा खरीदने के लिए, 1 का सैक्रिफाइस एक इसका ज्यादा खरीदने के लिए. तो एवरी टाइम x is increasing and y is diminishing. Y is diminishing. Maybe y is not very interested for you. Maybe y is not very tasty for you. ठीक है? That is why you have decided to decrease the purchasing of y and you are interested in commodity x. That is why you are increasing the purchasing of x. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. ठीक है. हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड. अब पता है जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर तक घर में ट्राई करना. तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ रफली, हालांकि अब टाइम हो रहा है, कभी मैं पहले से ही बाय बोल देती हूँ, हालांकि टाइम हो रहा है, कभी भी ऑफ हो जाएगा. ये जो है ना इंक्रीजिंग यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है. एक्स जो इंक्रीज हो रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, वाई जो डिक्रीज होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना. और जब ड्रॉ करेंगे ना तो इट विल टेक द कॉन्वेक्स शेप. तुम लोग को याद होगा पीपीसी ऐसे था ना कॉनकेव, पीपीसी Yes, ma'am. कॉनकेव Yes, था. ma'am. हाँ Yes, ma'am. उस समय क्लास में मेरे 31 बच्चे थे. तो कम बच्चे ही क्लास किए होंगे, बाद में बहुत सारे बच्चे आए, शिवम है, रवि भूषण है, खुशी है, प्राची है, आज मुस्कान आ गई. तो वो इसको नहीं जानते हैं. अब चलो नहीं भी जाने तो चलेगा,